आप सारे बच्चे लिख के रखेंगे एंड हम लोग आगे जाएंगे. वी आर इंटरेस्टेड टू सॉल्व एन न्यूमेरिकल, एन इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल. पक्का? चलिए. A RCC column 400 mm by 400 mm. A RCC column 400 mm multiplied by 400 mm in a section is reinforced with 6 bars of 18 mm diameter steel. 18 mm diameter steel. Full stop. If the column carries a load of 500 Newton, if the column carries a load of 500 Newton, find stresses developed in concrete and steel bars. Find stresses developed in concrete and steel bars. Assume capital E for steel 2.1 into 10⁵ Newton per mm square. 2.1 into 10⁵ Newton per mm square, and capital E for concrete 1.4 into 10⁵. Sorry, 1.4 into 10⁴. Four. It is 1.4 into 10⁴ Newton per mm square. Newton per mm square. Sure? To stop. So just now we are completed with that dictation of the question. Last line is EST. E for steel is 2.1 into 10⁵, and E for concrete is 1.4 into 10⁴ Newton per mm square. Sure? Chaliye. Now we can observe the board. What I have done, we have saved that time. So while dictating the question only, I have gone for some given data which is in front of us. एक टाइम उसे चेक करेंगे एंड आगे जाएंगे. हमने क्या बात किया था? We are having a column of 400 mm by 400 mm. So we can say capital A is equal to 400 multiplied by 400. So we can have the first answer of capital A. एक बड़ा सा कॉलम हमें उन्होंने रेक्टेंगुलर दिया हुआ है. So what we can say? एक कॉलम दिया है हमें और उसका साइज कितना दिया है? 400 mm by 400 mm. एंड ये कॉलम के अंदर we are reinforced with two material. So what we can say, we are having an square block, and in that square block we have added concrete, and
At the same time, we added steel into it. So it includes 6 steel bars which are inserted into it. Sure. So what you can say? These are nothing but steel bars, and this is nothing but concrete. What we are having with us. So how many materials that we are having with us? 2 materials. One is concrete and another one is steel. पक्का? चलिए. Now we can move ahead. अभी हमें कहाँ पे फोकस करना है? अभी हमें जो चेकलिस्ट बनाई थी हमने वो सबके दिमाग में है. What we require? We require to find out initially the areas. तो ये एरियाज कैसे मिलेंगे हमें? हम लोग लिख सकते हैं. It is area of an column. It is nothing but A. What is that? A is equal to 400 into 400. So it is 16 into 10 raised to 4 mm square. It is 16 into 10 raised to 4 mm square. सही बात है. So we are having that first part with us जहाँ पे area हमारे पास है. But हमें ये area में interest नहीं है. We are interested in areas of 2 materials. वो मटेरियल का एरिया कैसे मिलेगा? तो हम लोग पहले स्टील को लेते हैं. We can say this A1, and since it is a circular rod, diameter is given as 18, तो फॉर्मूला आएगा it is 5/4 d1 square. क्या आएगा फॉर्मूला A1 का? 5/4 d1 square. लेकिन अभी हम लोग प्रॉपरली ध्यान देंगे तो हमें यहाँ पे और एक चीज समझ में आती है. सर ये 5/4 d1 स्क्वायर में उन्होंने 6 मेंबर्स दिखाए हैं. सो इट इज नॉट एन सिंगल रॉड. 6 है, 6 है कि नहीं? तो जब 6 है तो वहां पे हमें एक सिंबल हमने यूज किया था, दैट इज n. यू कैन सी n. बराबर है. व्हाट इज n? n आर द नंबर ऑफ बार्स व्हिच आर अवेलेबल इन द मेंबर. सो वी कैन से इट इज n into 5/4 d1 square. What is that n? It is 6 into 5/4. It is 18 square. And now I'm expecting answer in an chat. Can anybody will reply me? What is that area of steel, please? Area of steel is 1526.81. Sure? Very good answers. Hope so. सारे बच्चे कैलसी लेके बैठे हैं and you are doing the calculation simultaneously. Don't waste the time by just observing the video. या सर कैसे दिखते हैं, कसं वाटतं, छान वाटतं. Do the calculations. A1 1526.81. ये क्या हो गया? ये हो गया एरिया ऑफ स्टील जो कॉलम के अंदर है. लेकिन हमें किस में इंटरेस्ट है? हमें A2 में इंटरेस्ट है. व्हाट इज A2? इट इज एरिया ऑफ कंक्रीट जो ये कॉलम के अंदर आएगा स्टील को छोड़ के. सही बात है. तो कैसे आएगा वो दोस्तों? वो कुछ बात कर सकते हैं? हाँ सर, इट इज सिंपल वन. सर इट इज एरिया ऑफ कंक्रीट. कैसे मिलेगा एरिया ऑफ कंक्रीट? सर A2 इज इक्वल टू it is area of column minus it is area of steel. So if we are going to subtract both the values, we can easily have our answer, and it gives us ये ऊपर का वैल्यू देने का और उसमें से सेकंड वैल्यू माइनस करने का. Tell me, what is the value of mm square? I'm expecting the answer in chat. Very good, Akash, Pratik, Vedant, Harsh, Vaishnavi. Very good, Alpita, Satish. Very good answers. It is 158473. 158473.19. Very good, Kiran. So that's a very good thing. कि सारे बच्चे अभी पूरा फोकस करके लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं, आंसर दे रहे हैं.
है कि नहीं? मैंने हमेशा बोला माइक बंद रखने का, चैट में बात करने का, मैक्सिमम थिंग यू कैन बी हेल्पफुल टू एवरीबॉडी. सो वी फाउंड आउट A1, वी फाउंड आउट A2. बट फाइंड आउट क्या करना है, ढूंढना क्या है न्यूमेरिकल में. सो न्यूमेरिकल में हमें फाइंड आउट करना है. सो इट इज टू फाइंड नंबर 1 सिग्मा 1 एंड नंबर 2 सिग्मा 2. सही बात है. तो हमने क्या चेकलिस्ट बनाया था, चेक कीजिए. सो वी रिक्वायर टू फाइंड आउट A1 किया हमने, वी रिक्वायर टू फाइंड आउट A2 वो भी किया हमने. थर्ड वन व्हाट इज रिक्वायर्ड, एनीबॉडी? A1 A2 के बाद में हमें क्या लगता है? सो हमें लगता है मॉड्यूल M, मॉड्यूलर रेशियो M. सही बात है. स्मॉल m भाई साहब, कैपिटल M नहीं यूज करेगा. कैपिटल M मतलब मोमेंट होती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की तरफ फिर सेकंड मोमेंट से हम लोग जाते हैं. स्मॉल m इज मॉड्यूलर रेशियो. कैसे आता है मॉड्यूलर रेशियो? 2e का डिवीजन. कौन से 2e में ऊपर कौन सा लेने का? क्या बात किया सर ने? बड़ा वैल्यू न्यूमरेटर में, छोटा वैल्यू डिनोमिनेटर में. बड़ा वैल्यू न्यूमरेटर में, छोटा वैल्यू डिनोमिनेटर में. एंड हम लोग आगे जा सकते हैं एंड वी कैन से modular ratio m is equal to E1 upon E2. Modular ratio m is equal to E1 upon E2. Now the question is what is E1 and what is E2? So बड़ा क्या वैल्यू आपका चेक करेंगे यहाँ पे, which is the bigger one? सर 10⁵ है, ये 4 है, तो छोड़ दो. 2.1 क्या हो गया अपना? बड़ा वैल्यू हो गया. So we can say it is 2.1 into 10⁵ divided by 1.4 into 10⁴. I'm expecting the answer in chat. Hello? हाँ? हाँ का बाळा पटकन बोला, तुमचं लेक्चर चालू आहे, मी शिकवतोय. क्लास चालू झाला बाळा, त्याचं सांगतोय तुला. मग तू आपला क्लास, तू आता एक काम कर, पटकन क्लासच्या ग्रुप मध्ये जा. तिथे तुला एक गुगल मीटची लिंक दिसेल, गुगल मीटची. मोबाईल मध्ये गुगल मीट आहे का तुझ्या? गुगल मीट नावाचं एक ऍप्लिकेशन आहे. मला ह्या नंबरला पर्सनल हाय पाठव, मी तुला लगेच ऍड करतो आणि ती ग्रुपची लिंक देतो. काय करायचं माहितीये का तुला? गुगल मीट नावाचं एक सॉफ्टवेअर आहे प्ले स्टोअरला, गुगल मीट. हा, ते डाउनलोड करून घे तुझ्या मोबाईलमध्ये. ठीक आहे. आणि तुला एक लिंक देतो, ती जॉईन कर. तू पटकन लेक्चरमध्ये जॉईन होशील. मला व्हॉट्सअपला हाय म्हण आपल्या नंबरला, या नंबरला. मी तुला लगेच लिंक देतो, त्याच्याने तू गुगल मीट डाउनलोड करून घे. ठीक आहे. हा, तू शिकवतोय, समोर सगळे भेटतील तुला आपल्या पिक्चरला. बोला. आई एम एक्सपेक्टिंग दैट आंसर. कितना आया भाई साहब? 1.5 आया. बी केयरफुल. एक ऊपर 10⁵ है एंड नीचे हमने भाई साहब 10⁴ दिया है आपको. बी केयरफुल, मिस्टेक होती है. मैंने बोला ना आपको मिस्टेक होती है, ध्यान से कैलकुलेट करने का. ये छोटी छोटी बातें हैं जहाँ पे अगर आप मिस्टेक करेंगे तो मार्क्स जाएंगे. 15 इज द करेक्ट आंसर. So what is m is equal to 15? What is m is equal to 15? मिळालं सगळ्यांना? आता m चा यूज कुठे करतो आपण, सांगा बघू मला. m चा यूज आपण कुठे करणार? वी आर गोइंग टू यूज इट इन आवर बेसिक इक्वेशन. कौन सा बेसिक इक्वेशन है? सर वो सिग्मा 1 वाला. कौन सा इक्वेशन है? सिग्मा 1 वाला. मिळतोय का सगळ्यांना सिग्मा 1 वाला इक्वेशन? चेक करा, पाहूया आपण त्याच्यामध्ये किती आन्सर्स येतात. So since we can say sigma 1. सिग्मा 1 का वैल्यू हमें मिला 15 सिग्मा 2. श्योर? हर्ष, आई एम नॉट गेटिंग व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट. पॅरामीटर कंपैरिजन नहीं केला म्हणजे काय? ठीक है, आप चैट में डालिए, मैं आपका कुछ क्वेश्चन है तो उसका आंसर दे दूंगा. श्योर?
अभी हमने क्या किया है, हमने दोनों ई को कंपेयर किया है, हमने क्या किया, दोनों ई को कंपेयर किया है। जब हम लोग दोनों ई को कंपेयर करते हैं तो हमें क्या समझ में आता है, बोलिए क्या समझ में आता है हमें जब हम लोग दो ई को कंपेयर करते हैं। सर जब हम लोग दो ई को कंपेयर करते हैं हमें ये ध्यान में आता है, सो इट इज नथिंग बट E1 अपॉन E2, इट इज E1 अपॉन E2, बरोबर। त्याच्यातला जो मोठा ई आहे तो वरती घ्यायचा। अभी 2.1 इंटू 10⁵ में बड़ा ई है तो हमने ऊपर दिया, 1.4 इंटू 10⁴ छोटा ई है तो हमने उसे नीचे दिया। सही बात है। चलिए, तो मूविंग टू द लास्ट फॉर्मूला, व्हाट इज दैट फॉर्मूला, P इज इक्वल टू σ1 A1 प्लस σ2 A2। चलिए सब्स्टिट्यूट करेंगे सारी वैल्यू। P 500 न्यूटन में दिया है, अरे छोटा है, नो प्रॉब्लम, इट इज 500 न्यूटन। σ1 एज इट इज, नहीं सर अभी σ1 का डायरेक्टली हम लोग वैल्यू डाल सकते हैं। और क्या वैल्यू डालेंगे σ1 का हम लोग वहां पे, सो वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट 15 σ2। व्हाट इज वैल्यू ऑफ A1, so value of A1 is 1526.81, it is 1526.81 प्लस σ2 आपका वैसे रहेगा A2, what is A2, 158473, 158473.19, श्योर। तो अगर हम लोग प्रॉपर कंपेयर करेंगे तो क्या कर सकते हैं, सो वी कैन टेक आउट σ2 कॉमन एंड इट इज 500 डिवाइडेड बाय 15 into this answer, sure, plus 158473.9 into σ2, sure। बहुत ही छोटा सा आंसर आएगा ना, बोलिए क्या आंसर आएगा। हर्ष मैं आपके आंसर क्वेश्चन को आंसर देता हूँ, नॉट नेसेसरी है, बाय कंपैरिजन हमें समझ में आता है ना। अगर 10⁴ है तो 100% क्या है, छोटा ही है। अगर आप उसको 10⁵ में लेके जाएंगे तो ये क्या मिलेगा, 0.14। तो जब ये नंबर में समझ में नहीं आता है तो यहाँ पे आप डिसीजन ले सकते हैं, दिस इज 10⁵ बड़ा है, 1.4 10⁴ छोटा है, ये पूरा ही छोटा है। तो हमेशा जरूरत नहीं है करने की, वी कैन मूव अहेड। बोला एनीबॉडी द आंसर, टोटल फाइनल आंसर। तो बहुत ही बड़ा आएगा, यानी 500 न्यूटन छोटा आता है ना, तो हम लोग एक छोटा चेंज करते हैं न्यूमेरिकल में, इट्स अवर न्यूमेरिकल ना, तो वी कैन गो फॉर 500 किलो न्यूटन लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम लोग, 500 किलो न्यूटन। अभी किलो न्यूटन का फायदा क्या होगा, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, and what we can do, we can replace these two values, मतलब बहुत ही छोटा नहीं आएगा आपका, है कि नहीं, जस्ट randomly dictated and numerical ना, we're not taking it from somewhere, we're just doing it by own। what is σ2, σ2 is 500 into 10⁵ divided by this answer, and this answer was 181375, 181375.34 was that part। Now tell me what is the answer of σ2 दोस्तों। It is Newton per mm square, and σ1 is 15, σ2 substitute the values 15 into the part, gives us a final answer of Newton per mm square। check करो, anybody, I'm expecting the answer in chat।
Yes, we are getting replies. It is 2.756, so you can say 2.76. Check करो. Number of students are giving me different answers. हर बच्चा अलग अलग आंसर दे रहा है. What are you doing, man? किस पे भरोसा करें? सबने इसे 10⁻³ दिया. Everybody has converted at 500 into 10⁻³. हेलो सर 2.688 आले सर. मैंने बोला माइक पे नहीं बात करने का, चैट पे लिखो. या चलो बोल दो, अभी बोल ही दिया आपने तो. कितना आएगा बोल बड़ा, माइक पे बोलो. Unmute yourself. सिग्मा 2 किती आला? 2.76. 2.688 मतलब थर्ड नंबर मोठा आहे ना, 5 पेक्षा मोठा मग 2.78 तर 2.678. Check करो. 2.688, 2.76 is the answers what you're having with you. You can cross check your answer. Maximum students what are getting with you. ऐसे पे check करेंगे. Take out your calculator. Maximum students are getting 2.76. What I'm observing is 2.76. ठीक है, आगे पीछे तो चलता है. It is 2.6 or 2.7 doesn't matter. Substitute that value 15 into 2.76. The value of sigma 1. What will be the answer of sigma 1? It's 41.25. Sure. Now let me know. Have you understood the complete concept of the numerical? पक्का? कहाँ से हमने start किया? We started with a very basic thing. We have revised the formulas. We have seen the concept. We have gone for the 100% revision of that part. We have found out and checklist जो हम लोग numerical में ढूंढेंगे, and we have completed with an numerical. Sure. कल आपने किए थे और मैंने बात किया था. Yes. आज हम लोग व्हाइट बोर्ड पे भी करेंगे. So if you are observing that part, special Umesh ji, are you observing this? आपको क्लियर है दोस्त? Everybody? नक्की? Thank you. तो अगर आपको सच में अच्छा लगा है, if you are happy with the part, please subscribe the channel, join the classes. आप बाकी के दोस्तों को बोल सकते हैं. Thank you विक्रम. चलिए